खारजा एस जयशंकर ने लोकसभा में बांग्लादेश को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हमारे बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि जनवरी से वहां कशीदगी है, बांग्लादेश में जून जुलाई में तशद्दुद हुआ, हम वहां की सियासी जमातों से राब्ते में थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बांग्लादेश में हालात बदले और हालात इस तरह बदले कि हसीना वाजिद को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को हालात सबसे ज्यादा खराब हुए। एस जयशंकर ने कहा कि अक़लियतों पर हमले सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। हम हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ राब्ते में है, बहुत से तलबा वापस आ चुके हैं, हमारा सफारत खाना फाल है, हमें उम्मीद है कि वहाँ की हुकूमत हमारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। As honourable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored.
our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national concern. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आमरों को बांग्लादेश के हालात से सबक सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर आमिर का यही हश्र होगा। इस मुल्क में बच्चों के साथ गैर मुंसिफाना सलूक किया जा रहा था। मईशत काफी नीचे थी और मईशत के साथ अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं थे। बच्चों ने एक मुहिम शुरू की जिस पर कोई काबू नहीं पा सका। लोग सब्र कर सकते हैं लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अगर शेख हसीना वहां से न बचकर निकलती तो उसे भी मार डाला जाता। बहुत है। एक तो इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी। इकोनॉमी के साथ साथ उनके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं थे और मुझे दिखता है कि इसको आखिरकार बच्चों ने एक मुहिम चला दी जिससे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। ना उनकी फौज कंट्रोल कर सकती थी, ना कोई कंट्रोल कर सकता था। इसलिए ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज़ भी ज़रूर हुई है। वहाँ पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहाँ ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी एक आवाज़ थी। बात यही थी कि अगर ये वहाँ से फरार नहीं होती तो ये भी इसको भी मार डालते। इसलिए इसको जिंदगी बचाने के लिए भागना पड़ा वहां से। एनसी के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। ताखीर हुकूमत की तरफ से हुई है। इस ताखीर की वजह यह कि उनके लोग आज़ादी के साथ यहां रैलियां निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही रियासत का दर्जा वापस दे। अच्छी बात है, आए, मगर मैं इलेक्शन कमीशन से जरूर एक बात कहूँगा, वो ये ना करें जो उनने बाकी मुल्क में किया है। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आए इनके ऊपर बहुत सी उंगलियां उठाई गई हैं और ये उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ होशियार रहें, कहीं यहाँ भी वैसी गलतियाँ न करें जिससे जो भी कुछ यहाँ पे अमन है उसमें फिर से एक मुश्किल न पड़े। मैं समझता हर एक पर तैयार है, हर एक काफ़ी वक्त से तैयार है। यही डिले कर रहे थे। मैं जानता हूं इनके। आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर इलाकाई जमातों का गलबा रहा। जम्मू कश्मीर की साबिक़ा रियासत में एस्टैब्लिशमेंट की तश्कील में नई दिल्ली की बहुत ज्यादा तवज्जो और मुदाखलत रही है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में दोबारा मुनज़्ज़म किया गया और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 370 के तहत दी गई खसूसी हैसियत छीन ली गई। तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी जैसी सियासी जमातों के लिए क्या तब्दीली आई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल क़य्यूम भट्ट का कहना है कि हमारे ज्यादातर रहनुमाओं ने तंसीख के बाद पार्टी छोड़ दी, लेकिन पिछले 1.5 साल से बहुत सारे रहनुमा वापस शामिल हुए। अब्दुल क़य्यूम ने इसराती अंदाज में कहा कि ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बस भरी हुई है, लेकिन हमारे पास अभी कुछ सीटें बाकी है और ये बस फौरन दिल्ली जाएगी, इसलिए पीडीपी के साथ सफर करने का ये बेहतरीन वक्त है। देखो, हमारा बड़ा मुश्किल दौर था। 5 साल में हमें लगभग 75% 80% हमारी पार्टी को हमारे पार्टी से लोग चले गए।
लीडरशिप क्राइसिस हो गई। लेकिन इसको कहते हैं ना कि जब किसी घर में किसी की मौत हो जाती है बुज़ुर्ग की, तो फिर बच्चों पर वो छोटे बच्चे फिर पनपते हैं, वो अपने एहसास और अपने जज्बात को काम लेकर आगे चलते। इसी तरह हमने पीडीपी को आज बच्चों ने इस हाल तक पहुंचाया कि अब जो हमारी गाड़ी से जो सवारियां उतरी हैं, तो अब उनको मन करता है कि हम इस गाड़ी में सवार हो जाएं। तो ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। माशाल्लाह हमारी गाड़ी चलने लगी। और आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ श्रीनगर में सिर्फ 2 ही गाड़ी दिल्ली को जाने के लिए, एक एनसी, उसमें सवारियाँ फुल है। पीडीपी वाली जो है इसमें कुछ उतरे, तो अब हमने ट्रैक पर गाड़ी को लाया। अब वो दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन हम उनको तलाशी लेकर अंदर इजाज़त देंगे, ठीक है ना। हमें सफ़र दिल्ली तक ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत कैडर के साथ वादी की सबसे पुरानी सियासी जमातों में से एक है। पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान भारी अक्सरियत से जीती है। एनसी को 3 में से 2 सीटें मिली हैं, लेकिन जो हार गए वो पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान रहनुमा और तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि ये शेर कश्मीर था जिसने आर्टिकल 370 और 35A के लिए यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जंग लड़ी। हमने हमेशा कश्मीरियों के हकूक की जंग लड़ी है। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में प्रॉक्सी सियासी पार्टियां और उम्मीदवार बनाकर हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हालिया पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां खड़ी है। तो अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज़ और स्टैंड की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या है? ये लोग जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े कर पाए और जिन्होंने अपने ज़र खरीदे हुए गुलामों को इलेक्शन में डाला, उनकी तो ज़मानत तक ज़ब्त हो गई। जिसको बीजेपी सपोर्ट करती थी, जिन पार्टीज़ को, उनकी तो ज़मानत ज़ब्त हो गई। ये तो अब आपके सामने आयान है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी जानिब बीजेपी ने पार्लिमानी इंतखाबात में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, लेकिन जो कुछ हासिल हुआ है वो 7 लाख से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल एक कैडर है जो पार्टी के तर्जुमान और लीडरों के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में बीजेपी में शामिल हुए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर बदला, जम्मू कश्मीर बदला, और बदले हुए जम्मू कश्मीर में बीजेपी भी बदल गया है। जहां कभी हम देखते थे 2014 से पहले, इन 10 सालों से पहले बीजेपी अनटचेबल पार्टी मानी जाती थी कश्मीर में। आज अगर देखेंगे 7.5 लाख मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के खाली कश्मीर में हैं। और मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं, 10 मार्च से 1 जून तक 37,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और मेंबरशिप कितनी हुई है वो 7.5 लाख के बराबर है। जहां यहाँ टायर गैस शेलिंग बंद हुई, ग्रेनेड बंद हुई, या स्टोन पेल्टिंग बंद हुई, हड़ताल बंद हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर बराए जनूबी कश्मीर डॉक्टर रुमशी सिंह ने जनूबी कश्मीर के अजला का दौरा किया और उन्होंने स्पेशल समरी रिवीजन के हवाले से हो रही तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नए वोटरान जमहूरी अमल में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों ने भी एतमाद का इजहार किया। डॉक्टर रुमशी सिंह ने गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल चलगाम में एक शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। तो मुझे 4 डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा करने का मौका मिला और मैं अनंतनाग गई, पुलवामा गई और शिपियन और अब कुलगाम, जो ये चौथा अंतिम मेरा विजिट है। तो इस दौर में यह हमें देखना है कि कोई जो है इलेक्टोरल रोल में कोई रह तो नहीं गया, और जो बच्चे जो कि 1 जुलाई 24 में जिनका 18 साल हो जाता है, तो उन सभी बच्चों को इंक्लूड करना है। और इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो कि किसी कारण से अगर प्रोसेस में कभी रह गए, तो उन तक जो है हमारा जो सरकारी महकमा है, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मशीनरी है, तो वो बखूबी उन तक पहुंच पाया है और वो इलेक्शन मशीनरी तक पहुंच पाए हैं। उसके लिए बहुत प्रणाली। सरस लाइवलीहुड कश्मीर 3.0 का तीसरा एडिशन हाल ही में श्रीनगर में डल झील के किनारे वाक़े ज़बरवन पार्क में शुरू किया गया। 10 रोज़ा मेला हिंदुस्तान भर की दिए ख़वातीन कारोबारियों की सलाहियतों और इस्तिक़ामत का एक मुतहरिक नुमाइश है।
महकमे धी तरक्की और पंचायती राज के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस साल के मेले में मुख्तलिफ रियासतों के 200 से ज़्यादा कारीगर शामिल हैं जो दस्तकारी की एक शानदार सफ पेश कर रहे हैं। 500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो सब अपना हैंडमेड का काम करती हैं, जैसे कि ये सब है और ये बच्चों के कपड़े बनाना, ये सूट वूट सब मतलब हर तरह का काम करती हैं, फूड्स का भी काम करती हैं। और सब हैंडमेड होता है? सब हैंडमेड होता है हमारा। महिलाओं के लिए ये है कि उनको ऊपर बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपना मतलब अपना खुद का काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। जैसे कि मोदी जी ने बोला था कि महिलाओं को हमें लखपति बहनें बनाना है, तो वही चल रहा है कि भाई हम बस यही चाहते हैं कि जैसे मतलब मैं जैसे खड़ी हुई हूँ आज कि मैं बाहर कभी नहीं निकली अपने घर से। उसके बाद मैंने जब ये ज्वाइन करा तो उसके बाद अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे अब मतलब हर जगह मौका मिल चुका है। मैं वहाँ क्या बोलते हैं नागालैंड, बिहार, राजस्थान और श्रीनगर तो मैं दूसरी बार आई हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम महिलाएं इतना उभर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं काम करने के लिए। मैं पहली बार आई हूँ, इतना मुझे पता नहीं है अभी कि यहाँ क्या क्या होना चाहिए है। चलो इस बार मैं आई हूँ, नेक्स्ट बार देखेंगे, अगर हमारा कुछ काम अच्छा चला तो नेक्स्ट बार फिर भी आएंगे। ये बताइए कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं आपके यहाँ पे? हमारे में वहाँ होता है गार्लिक होता है, तो दूसरा मक्की का आटा है, सत्तू है, तो मतलब बाकी ये कुछ और चीज़ें भी हैं जो अभी हमारे पास ख़त्म हो गई हैं। चलो नेक्स्ट बार हम ज़रूर लाएंगे। मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हम औरतों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। पहले तो ऐसा था कि हम औरतें घर से नहीं निकल पाती थी क्योंकि डर भी था, तो हम अपने घर वालों से हर जगह हाथ फैलाती थी। तो अब इतना है कि हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। पल जुतियाँ का है। अच्छा। और हमारे समूह का नाम है नारी शक्ति। और ये सारा जितनी भी ये जुतियाँ बनती है, चप्पलें बनती है, सब हैंडमेड होती हैं? हाँ, हैंडमेड। अच्छा। और ये हम खुद बनाते हैं हाथों से। और सभी लेडीज़ें हमें समूह में जुड़ी हुई है। बस। अच्छा, ये बताएं जो सारस मेला है जो अभी आज यहाँ चल रहा है, पहले भी हुआ था, लास्ट ईयर भी हुआ था, इससे पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया है, कहीं और भी ट्रैवल किया है आपने, या ये पहला ट्रैवल है आपका इस बार यहाँ? तो पहला ट्रैवल। अच्छा, और इससे पहले कहीं और गए हैं, स्टॉल लगाया है? हाँ, बाकी जगह सब जगह लगाया हमने। PMGSY की जानिब से त्राल के चक से बडगुंड तक बनने वाली अहम राब्ता सड़क पर तामीर और तजदीद के काम में नाकिस मनसूबाबंदी और चंद अनासर की हौसला अफजाई करने के खिलाफ मकामी लोगों में जबरदस्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे महकमे ने सड़क की कुशादगी 30 फुट करने के हवाले से टेंडर जारी किए, मगर मुतादिद मकामात पर सड़क की कुशादगी 20 फुट भी नहीं रखी गई। इनका इल्जाम है कि असर रुसूख रखने वाले लोग घरों के नजदीक अराजी को छेड़ा नहीं गया और गरीबों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करके अवाम के पैसे को जाया किया जा रहा है। कान्हामा मागाम में नूरुलैन ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की जानिब से हेड ऑफिस पर मुनक्किदा एक बड़ी तकरीब में यतीम मुफलिस लड़कियों में शादी ब्याह के लिए किट्स साजो सामान तकसीम किया गया ताकि वक्त पर ये यतीम लड़कियां शादी के बंधन से बंध सके। इन यतीम लड़कियों में कुरान मजीद के अलावा पोशाक और दीगर साजो सामान फराहम किए गए और इन लड़कियों ने मसरत का इजहार किया। ये तकरीब डॉक्टर अब्दुर्रहमान बडरू और मीर फयाज की जेर सरपरस्ती में हुई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका, इन्होंने यहाँ पे बुलाया, क्योंकि यहाँ आके मेरे जैसे लोगों को बहुत सवालों का जवाब मिल गए हैं। और अंदर कुछ थे तो जिनको लगा कि नहीं, अभी सोसाइटी में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे ये सब मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें यहाँ पे बैठी है, आप सामने आए, पहले परखे कि अदार कैसा काम कर रहा है, तो सामने आके इनको मदद कर लीजिए, सो दैट ऐसी हमारी बेटियाँ घर पे बैठे न रहे, इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम इनकी शादी करें, ये भी अपना घर बसा सके। इन्होंने मुझे यहाँ पर एज अ मेहमान बुलाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चियाँ हैं, ये समझो ये हमें खुद अपनी बच्चियाँ हैं और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। हमारे कश्मीर के अंदर न जाने कितने ऐसी लड़कियां हैं जो गरीब, मजलूम, यतीम लड़कियां हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसे ये जो ट्रस्ट काम करें तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। 25 से 30 मैरिज किट्स आज हमने दिए हैं उन नादार, यतीम, गरीब लड़कियों को जिनका कोई आसरा नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश है आइंदा भी उन लोगों से कि वो हमें मुआवनत करे ताकि हम इस काबिल बन जाए कि हम दोबारा भी इन नादार मुफलिस
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्मृति दिवस पर उन्हें शत शत नमन। रामपुर दौरे पर रही कंगना रनौत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, इस विशाल ब्रह्मांड के सामने हम कितने कमजोर हैं, ये धरती मां हम पर दया करे। समेज त्रासदी में लापता 36 लोगों के परिजनों के लिए गए डीएनए सैंपल, डीएनए मैचिंग के बाद ही हो पाएगी शवों की शिनाख्त। लाहौल स्पीति में बादल फटने से सड़कें बंद, ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजन इलाके में एक दिलदोज हादसा पेश आया और एक 20 साला लड़का फिसलकर कुएं में गिरने से हलाक हो गया। हुकाम के मुताबिक इस वाकये के फौरन बाद लाश को निकालने के लिए फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 20 साला इरशाद अहमद डार वल्द गुलाम अहमद डार साकिना हाजन बांडीपुरा के तौर हुई है। इरशाद अहमद डार की मौत से पूरे इलाके में मातम और गम का माहौल है। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, हाजन सोनावारी में एक 20 साला नौजवान की गहरे कुएं में गिरकर मौत वाक़ा हो गई है। आपको बता दें, हाजन सोनावारी में एक बाग में एक नौजवान काम कर रहा था, इस बीच वो एक गहरे कुएं में गिरा, जिसके बाद पुलिस और मुकामी लोगों की मदद से उसे फ़ौरन रेस्क्यू तो किया गया, लेकिन बाद में जब उसे यहाँ पे CHC हॉस्पिटल हाजन पहुँचाया गया तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने उन्हें डेड ऑन अराइवल करार दिया, मुर्दा करार दिया। इस तरह से ये मनाजिर आप देख रहे हैं हाजन सोनावारी के हैं। अभी जो उनकी डेड बॉडी हैं यहाँ पे लीगल मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ के लिए इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और उसके बाद उनके जो लवाहिकीन हैं उनके सुपुर्द की जाएगी। आपको बता दें, हाजन सोनावारी का ये लड़का था, 20 साला नौजवान इरशाद अहमद डार नाम से इनकी शिनाख्त बताई जा रही हैं। अपने बाग में कुछ काम कर रहा था, जिसके बीच इस बीच वो कुएं में गिरा। गहरा कुआं था करीब 30 फीट का, जिसके बाद सफोकेशन की वजह से वहाँ पे उनकी मौत वाक़ा हो गई। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। बारामूला कस्बे में मुनासिब पार्किंग स्लॉट्स की अदम दस्तियाबी से लोग काफी परेशान हैं। मुसाफिर अपनी कारें सड़क के किनारे और पुलों पर खड़े करने पर मजबूर है। सिविल इंतजामिया की जानिब से कस्बे में मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग की मुनासिब जगह फराम करने के लिए काफी कोशिशें की गई, लेकिन आज तक तमाम मनसूबों पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस नाकामी की वजह से शहर की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम रहता है और सिविल सोसाइटी ने जिला इंतजामिया के साथ करीबी राब्ताकारी में कुछ जगह तजवीज की थी जहां गाड़ियों के लिए मुनासिब पार्किंग की गुंजाइश रखी जा सकती थी। अलहुदा मार्केट के करीब हुकाम ने 100 से कम गाड़ियों की गुंजाइश के साथ सिर्फ एक जगह मुख्तस की थी, जो कि नाकाफी है। सिविल सोसाइटी के रुकन मोहम्मद शफी भट्ट ने कहा कि इंतजामिया कस्बे में पार्किंग के लिए कुछ और जगह फराम करने के इम्कानात का जायजा ले रही है। उन्होंने मुसाफिरों से अपील की कि तब तक अपनी गाड़ियां पुलों और सड़क के किनारे पार्क करने के बजाय पार्किंग एरिया में खड़ी करें। में पार्किंग की बहुत दिक्कत है। अब हमने यहाँ पर प्रपोज किया था, बहुत सारी जगहों को हमने यहाँ पर इनको प्रपोज किया था, उनमें से नूरुल मार्केट में जो पार्किंग है वो फिर उसमें सेलेक्ट होगी, जिसका ऑर्डर भी बाज़ाब्ता निकला था, नोटिफाई हुआ था एरिया। लेकिन मसला ये है, जो हमने प्रपोजल दिया था, हमने बोला था चलो अगर पार्किंग आप यहाँ पर बना रहे हो तो आप मल्टी लेयर पार्किंग बनाओ, 2-4 मंजिला बनाओ पार्किंग, उसमें सामने से जो पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल में एल शेप में आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाओ, बैक साइड में आपको पार्किंग वहाँ पर रहेगी। अभी हमारे पास जो कैपेसिटी है पार्किंग की वो 100 गाड़ियों की कैपेसिटी है। जब हमारे पास मल्टी लेवल पार्किंग बन जाती तो उससे क्या होता है कि इसी एरिया को हम 400-500 गाड़ियाँ वहाँ पर हम फिर हम रख सकते थे और उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते थे, चाहे हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। इस चीज़ का उनको एक अच्छे से जायज़ा लेना चाहिए और इनके खिलाफ जो वायलेटर्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनको मजबूर करना चाहिए कि वो पार्किंग का इस्तेमाल करें। श्रीनगर के लालबंदी में महकमे बागबानी की जानिब से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सेब के काश्तकारों और नर्सरी के काश्तकारों ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। वर्कशॉप में काश्तकारों को बेहतर पैदावार हासिल करने की मालूमात फराहम की गई। महकमे बागबानी के डायरेक्टर ज़हूर अहमद भट्ट का कहना है कि वर्कशॉप का मकसद सेब के काश्तकारों और नर्सरी के काश्तकारों के इल्म में इजाफा करना है। पिछले साल से हमें डिमांड आ रही थी नर्सरी ग्रोवर्स की तरफ से
कि एक वर्कशॉप किया जाए जिसमें यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स और सिथ के साइंटिस्ट्स और जो यहाँ के लोकल जो है नर्सरी ग्रोवर्स जो पिछले 20 लोगों ने लगाई मदद की गुहार। मटेरियल अब कितने टाइम तक लाएंगे हम जो हाई डेंसिटी का, तो एक तो डर हो रही है हर साल जितनी रिक्वायरमेंट है उससे उसका 20% भी प्लांट मटेरियल बाहर से नहीं आ रहा है, तो बाकी 80% लोग हैं उनके एप्लीकेशन ऐसे ही रहते हैं, तो डिमांड हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये प्लांट मटेरियल यहाँ ही तैयार हो जाए। तो HADP में हमने नर्सरीज़ बनाई हैं यहाँ इस साल, अब हर साल बनाएंगे, तो रूट स्टॉक भी दिया है काफ़ी लोगों को, तो रूट स्टॉक में अब हम सेल्फ सफिशेंट, एप्पल रूट स्टॉक में हम सेल्फ सफिशेंट हो गए हैं, अब हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जहाँ तक प्लांट मटेरियल का ताल्लुक है वो अभी हम भी क्योंकि उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसमें टाइम लगाता है बनाए। सियाचिन बेस कैंप से इंदिरा पॉइंट तक इलाकाई फौज के प्लैटिनम जुबली साल की याद में एक चैलेंजिंग साइकिल मुहिम का इनेकाद किया गया। सियाचिन बेस कैंप से 21 इलाकाई फौज के जवानों पर मुश्तमिल मुहिम को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने टीम के अरकान के साथ बातचीत की। निकोबार जायजा से होते हुए जनूब की तरफ सफर करने के बाद मुहिम इंदिरा पॉइंट पर खत्म हो जाएगी, जहां हिंदुस्तान के जनूबी सिरे पर तिरंगा पानी के अंदर लहराया जाएगा। वुमेन अलायंस ऑफ लद्दाख और जुले लद्दाख ने लेह में मकामी ऑर्गेनिक फूड और दस्तकारी नुमाइश का इनेकाद किया और इस प्रोग्राम में जापान से आए मेहमानों ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वुमेन अलायंस के मेंबरान ने मुख्तलिफ मकामी खाने पेश किए और मुख्तलिफ NGOs की नुमाइंदगी करने वाले मुख्तलिफ मौज़ज़ीन ने इज्तिमा से खिताब किया और इस मौके पर अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। वुमेन अलायंस ऑफ लद्दाख के सदर ने मकामी खुराक और मसनूआत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर रोशनी डाली और समाजी खराबियों को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मेंढर के दूरदराज इलाके कालाबंद में मूसलाधार बारिश से बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से पानी सरकारी स्कूल के अंदर दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से तुलबा को खासी मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि 12 साल से ओडा का सरकारी प्राइमरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार है। उनका कहना है कि मुतल्लिका हुकाम की जानिब से इस सरकारी स्कूल को नजरअंदाज किया गया और उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्कूल को तामीर हुए 12 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, मगर दीवारें अब तक प्लास्टर की मुंतजर हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में असातिज़ा को स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को मजबूरन छुट्टी देनी पड़ती है। मेंढर के दूर दराज इलाका कालाबंद के प्राइमरी स्कूल मोड़ा में रात को हुई तेज़धार और मूसलाधार बारिश की वजह से पानी जो है स्कूल के अंदर दाखिल हुआ, जिसकी वजह से आज जो है स्कूल में बच्चों को छुट्टी दे दी गई। मकामी लोगों का कहना है कि इस स्कूल की तमीर 12 साल कबल की गई थी और आज तक दीवारों पर प्लस्तर नहीं किया गया, जबकि उसकी चारों तरफ कोई भी चार दीवारी नहीं है, ना ही कोई नाली निकाली गई है, जिसकी वजह से जब थोड़ी सी भी बारिश होती है और पानी पूरी तरह से स्कूल के अंदर दाखिल हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चों की क्लासरूम जो है में पानी काफ़ी 1-2 फुट जमा हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो जाती है। मकामी लोगों का कहना है कि हमने कई बार इस बारे में मुतल्लिका ऑफिसर से बात की गई कि स्कूल के अंदर जो है स्कूल के जो साइड से पानी आता है और स्कूल के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी बारिशों का अयाम होता है और बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह मुतासर हो जाती है। जबकि इस मामले में अभी तक जो है मुतल्लिका आला महकमा तालीम के आला अफसरों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लोगों ने ज़िला तरक्याती कमीशन पुंछ से अपील की है कि इस बारे में मुतल्लिका अफसरान को जो है आगाह किया जाए ताकि इस स्कूल की जो दीवारें हैं अभी तक प्लस्तर नहीं की गई हैं उनको ठीक किया जाए और स्कूल के चारों तरफ जो है नालियाँ निकाली गई जाएँ ताकि जब भी बारिश हो और बारिश का पानी स्कूल के अंदर ना दाखिल हो और बच्चों की पढ़ाई मुतासर ना हो। नाज़िम अली, न्यूज़ 18। जिला पुलवामा के नाइन बटपुरा इलाके में इंतजामिया ने कार्रवाई अंजाम दी और इंतजामिया ने सरकारी अराजी से नाजायज कब्जा हटाकर खेल का मैदान की तामीर शुरू कर दी है। नाइन बटपुरा में पहली बार नौजवानों के लिए हुकूमत ने खेल का मैदान तामीर किया और ये तामीराती काम शुरू हो चुका है। इंतजामिया के इस इक़दाम की मकामी लोगों ने काफ़ी सराहना की। मकामी लोग और नौजवानों ने DC पुलवामा से अपील की कि खेल के मैदान के साथ मुंसलिक सरकारी अराजी पर अभी भी नाजायज़ कब्जा बदस्तूर जारी है। उन्होंने DC से नाजायज़ कब्जा हटाने की अपील की। शुक्रगुजार इन जवान हंद यमो दिचे एप्लिकेशन यमो दोप दान तो ग्राउंड हज शुक्र खुदायस कुन दिचोक इन ग्राउंड हज बिचारन मगर इन ये जमीन गो जनाब मोहतरमो तिमन गो इन वो तुम दिव पान नजर यप दक्षिण खोवर यप सोरे जमीन इन कड़ने अगर गवर्नमेंट दपान अस गच चराई लैंड कड़न सारे
मगर यमो सोरे थोमुत यपरी कड़ने गवर्नमेंटस तुहज हम चलन सत वसात कर त्रानो तो जनाब मोहतरमा जमीन सोरे यपर यल यह ग्राउंड गोस पज पे शुबन मगर ये वो प्रॉब्लम ये लैंड योर अड़ कड़ने अगर यहाँ तड़िया यह शुक्र गुजार गवर्नमेंट बे ड्रग्सो सी बचाओ यम जवान ववान बुर कामों नश बचान मे बासान लगभग नमत पे गोड़ नमत पे गोडन ग्राउंड ये होतन पंचायत में मगर तक ऑलरेडी वो स्कूल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बथरवा में सफाई मुहिम का आगाज किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा हफ्ता के तहत एक सफाई मुहिम शुरू की गई और इस मुहिम का आगाज डीसी डोडा हरवेंद्र सिंह ने 1 अगस्त को किया था और इस मुहिम की क़यादत प्रिंसिपल नज़ीर अहमद ने की। इस तकरीब में सफाई सुथराई से मुतल्लिक़ आगाही और फजला जमा करने और ठिकाने लगाने जैसी मुख्तलिफ सरगर्मियां शामिल रहीं। मुहिम के दौरान रजाकारों ने सफाई की अहमियत और मजमूई बहबूद पर इसके असरात के बारे में मालूमाती सेशन भी मुनक़िद किया। इस मुहिम के दौरान स्कूल के इर्द गिर्द को साफ सुथरा बनाने की इज्तिमाई कोशिश की गई। क्लीननेस ड्राइव जो है इसको अच्छी तरह से अपना माहौल इर्द गिर्द जो है वो साफ़ रखें, लेकिन इतना ही नहीं है कि हम आपस में हमारे स्कूल के इर्द गिर्द जो गंद है उसको साफ़ करें। हमारा जहन भी साफ़ होना चाहिए। जहन साफ़ होगा, बच्चे जो हैं पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे पोस्टों पे जाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी जो भी हमें आर्डर्स आते हैं इस कंटेक्स्ट में हम चाहेंगे कि इसे लेटर एंड सेपरेट जो है उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। जो ये हमने आज अपने पूरे जो जितना भी स्कूल है हमने यहाँ पे सफाई की और अपने जितने भी स्कूल के बाहर एरिया है, क्लोज एरिया है, उधर भी हमने सफाई की। हम सभी बच्चों ने ये प्लेज लिया है कि 15 अगस्त से पहले जितना भी हमारा बदरवा है हम उसे साफ़ कर सकें और 15 अगस्त के बाद मतलब कि जितना भी ये गंदगी हम उससे आज़ाद हो सके। हमारा सबका ये मकसद है कि हम इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, 15 अगस्त का दिन आ रहा है, उसके आने से पहले हम पूरे भद्रवा को जो है क्लीन करना चाहते हैं ताकि हमारा सबका जो है एक किरदार अदा हो सके कि हम 15 अगस्त के दिन एक मॉडल पेश कर सके कि हमने अपने भद्रवा को एक साफ स्वच्छ बनाया है। बच्चे हमारे स्कूल के अंदर 700 हैं। हम चाहते हैं कि ये पैगाम स्वच्छता का 700 घरों में पहुंचे और 700 घरों के साथ साथ गाँवों में, और हमारा भद्रवा 15 अगस्त को इस गंदगी से, इस गलाजत से जो है आज़ाद हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए और हमारी वादी जो सही मानों में खूबसूरत है वो सही मानों में खूबसूरत लगे। यही पैगाम है। चक से बडगुंड तक तामीर की जा रही सड़क के काम से अवाम नाखुश है। PMGSY की जानिब से सड़क पर तामीर और तजदीद के काम में नाकिस मनसूबाबंदी और गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक सड़क की कुशादगी 30 फुट होनी चाहिए, लेकिन महकमे ने सड़क की तामीर में ज़ाब्तों का ख्याल नहीं रखा। उनका इल्ज़ाम है कि असर और रसूख रखने वाले अफरादों के घर के नज़दीक अराजी को छेड़ा नहीं गया, लेकिन गरीबों का इस्तेसाल किया गया। PMGSY ने फ़ोन पर जानकारी देते हुए कहा कि अवामी शिकायत का इजाला किया जाएगा और ज़ाब्ते के मुताबिक सड़क की तामीर की जाएगी। यह गोस दशो साइडों नेरुन बराबर, अगर यह 30 फुट यह गोस होड़ ते नेरुन 15 फुट, योड़ ते नेरुन 15 फुट। बेहद तेल त्रावन, अत गस धांधली गई तेल त्रावनस मज, यह गवर्नमेंट शेड्यूल से गो त्रावन बराबर जनाब नेरुन। यह 30 फुट यह 40 फुट यह गोस दशो, अत गस गरीबन जुल्म गसन, कंस मकान वथन वथनस, कंस दुकान वथन वथनस, यह गोस दोनों साइड नेरुन बराबर। अहन गरीबन अहन हूँ गो पकुन, यह 20 फुट यह 30 फुट यह 40 फुट यह गोस दशो साइडो मेन पे होकुन तीन 30 योकुन तीन बराबर। ये डबल रोड गई फायदे यह अग गाड़ी पार ग डबल गाड़ी हिंचन जिक्री है कि यहाँ से रोड बन रहा है क्योंकि मुश्किलात बहुत सारे हो रहे हैं। अभी इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कहीं और कोई बीमार पड़ता है तो गाड़ी से जाना पड़ता है, यहाँ से एक गाड़ी भी पार नहीं होती है। तो रोड कभी ब्लॉक होता है, कभी बड़ी गाड़ी आती है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो रोड ऑलरेडी मतलब ब्लॉकड होता है, तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और ये जो डबल रोड बन रहा है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे कि मतलब ये जो रोड है ये बिल्कुल मतलब लेफ़्ट साइड से भी 15 फीट निकलना चाहिए और राइट साइड से भी 15 फीट निकलना चाहिए। कहीं पे कोई करप्शन या कुछ और नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़
कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। उनको क्या होता है, उनको उनकी आवाज़ आगे जो मतलब ऑफिसर्स है वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। जो मतलब अच्छे खासे घराने के होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिश्वत या करप्शन पैसे दे के मतलब ख़रीदते हैं इन लोगों को और अपना जो एरिया है, अपना जो दुकानें हैं, बिल्डिंग्स है, उनको बचा लेते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रोड दोनों साइड से सेम निकलना चाहिए, 15 फीट एक साइड से, 15 फीट दूसरी तरफ से, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रोड ये सड़क गन ये हान बन तरफ कड़ी तीन गम तरफ कड़ी अड़न जान कड़ान ज्यादा अड़न जान कड़ान कम। अरस रसुक वोल बड़ मुई आए रियायत करान, गरीब जुलुम करान ज्यादा, हमन करान तुत तिस यहाँ दिवान बांट तिस यहाँ कड़ान अत यमो दोप गो 2-3 फुट त्रो 10 फुट अत पे मैगडम पे पे दोप ये 15 फुट अड़न जी वारियन जान यह कम ये साइड नेरान गए खुश रोड द्रायो अस त्रो जमीन तह, मगर यमो कर ये थोड़ा धांधली यमो कड़ अड़न जान कम अड़न जान कड़ ज्यादा। अपील हाकिमन तान वात यह कत अपील कर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हिमाचल में आपदा से अभी भी 50 लोग लापता, अब तक 161 लोगों की मौत। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भेजी जाने वाली राहत सामग्री से भरे ट्रकों को राज्यपाल दिखाएंगे हरी झंडी। ऊना में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के दिए निर्देश। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अवैध खनन को लेकर अधिकारियों के साथ की थी बैठक। सीपीएस रामकुमार चौधरी की पत्नी के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, टिप्पर और पोकलेन का 75,000 का चालान काटा। ऊना में मां चिंतपूर्णी श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला शुरू, रंग बिरंगे फूलों से सजा माता का दरबार। मंडी के जोगिंदरनगर और लड़भड़ोल में पीलिया के प्रकोप से लोग परेशान। शिमला के आईजीएमसी से चमियाना हॉस्पिटल में 8 विभागों की ओपीडी की जा रही शिफ्ट, 12 अगस्त से शुरू होगी नई ओपीडी। जिला पुलवामा के शेखारा इलाके में 14 साल कबल महकमे जल शक्ति की जानिब से तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीम को अधूरा छोड़ दिया गया, जबकि शेखारा और इसके मुल्हिका इलाकों में पीने के पानी की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। 14 साल से पहले शेखारा की मकामी आबादी ने वाटर सप्लाई स्कीम के लिए ज़मीन भी वक्फ की थी, लेकिन वाटर सप्लाई स्कीम का काम सिर्फ 90% काम मुकम्मल किया गया। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पीने के पानी की किल्लत के हवाले से महकमे जल शक्ति को दरखास्त दी गई, लेकिन महकमे की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लोगों का कहना है कि इस स्कीम से आम लोगों को कोई फायदा हासिल होगा। महकमे जल शक्ति के जूनियर इंजीनियर का कहना है कि इस स्कीम को पानी रुमशी नाला से फराहम किया जाता था, लेकिन चंद महकमों ने इस पर एतराज जताया, जिसकी वजह से इस स्कीम का काम बंद कर दिया गया। ये जो पीएचई प्रॉब्लम, ये पानी की किल्लत है, 2014 में हमारी ये टंकी बनी हुई है, लेकिन 2014 से हम सफ़र कर रहे हैं और वहाँ डिपार्टमेंट में हम गए थे, हमने बहुत सारी शिकायत की, लेकिन वहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये स्कीम चालू है, लेकिन हम सर लगभग 10 साल 12 साल से पानी की किल्लत से महरूम है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमने सर ग्रीवेंस सेल में भी इसकी कंप्लेंट की थी। गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं, खासकर हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इस मसले का हल निकालिए। अमिश शिकायत तथ आव ना रेस्पॉन्डा कहें, अचन वन बीजेपी वन सबका साथ सबका विकास, मगर अ समझी कत तंजीमों से कुने ना विकास ये ना कहें। पतम 7 जनवरी मज गोडनिक फिर ओतर त्रोमुत R&B मैगडम तिहंद शुक्र गुजार। कुपवारा जिले के चौकीपल मारसरी के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ खामोश एहतजाज किया और लोगों ने इल्जाम आयद किया कि महकमे ने बिजली फीस में बेतहाशा इजाफा किया है, जिसकी वजह से गरीब अवाम काफी परेशान है। उन्होंने LG इंतजामिया से बिजली फीस में कमी करने का मुतालबा किया।
इन लोगों का मानना है कि इन्हें बिजली की बिलें जो है वो ज्यादा आ जाती है, यानी कि 1000 तक इनकी बिजली बिलें आ जाती हैं। ये कह रहे हैं कि हम मजदूर पेशा अफराद हैं, दूसरी तरफ से बिजली होती भी नहीं है, और मसला ये है क्या ये बच्चों का फीस अदा करेंगे, क्या ये घर का खर्चा चलाएंगे, क्या ये बिजली का फीस भरेंगे, क्या ये वाटर सप्लाई का फीस भरेंगे। ये तंग आमद व जंग आमद की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये सारे जो है गरीबी की सत्ता से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं, यानी कि ये IAY की स्कीम में आ जाते हैं। ये बहकू में रहने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं कि हम 3 महीने यहाँ होते हैं, 3 महीने बहकू में होते हैं, लेकिन बिजली की जो बिलें हैं वो 1000 रुपए जो है बढ़ा दी गई है। ये कह रहे हैं कि हम वो बिजली फीस भर ही नहीं सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बिजली फीस कम नहीं करेगी तो हम चाहेंगे कि हम हमारी बिजली कनेक्शन ही काट दें। हमारे यहाँ जो ये हल्का है, इस हल्के में तकरीबन 95% लोग जो है सर मजदूर पेशा है। 70-75% लोग हमारे इस वक्त बहकू में सर बिजली की जो फीस थी सर हमने यहाँ पर बढ़ा दी है, 780 रुपया 800 रुपया का दिया है। मजदूर पेशा लोग हैं, 6 महीना मजदूरी करते हैं, 6 महीना बेकार होते हैं। ऊपर से जो पावर का मामला हमारा होता है, विंटर में हमें पावर यहाँ पर होता ही नहीं है सर, लाइन कट जाती है। और अभी जो आज का सीजन हम सर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हम बैक में रहते हैं, रंगियारी बैक में। इस वक्त भी अगर कोई भी टीम आई वो चेक करे, हमारे तकरीबन 70-75% लोग इस वक्त रंगियारी बैक में सर। ग्लोबल मार्सरी के रहने वाले हैं। हम अपने बच्चों की तालीम के लिए किताबें या वर्दी नहीं खरीद सकते। यहाँ इतनी बर्फ होती है जिसकी वजह से हमें 6 महीने तो बिजली ऐसा रोड भी नहीं होती है। हम पैदल यहाँ से चौकीबल तक जाते हैं, रेड्डी करालपुरा, बच्चों को उठा के कंधे पे, और हमें 780 रुपए की बिल की है सर। हमें लग रहा है कि हमें 108 नहीं भर सकते हैं, 780 हम कहाँ से भरेंगे सर? सर इसमें हमें बिजली मतलब 780 रुपया फीस की है सर। हमारी तो औकात 108 की भी नहीं है, जिसके हम सब मजदूर लोग हैं सर। हम अपनी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे को ये जो बिजली की फीस है थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि हम सब मजदूर पेशा लोग हैं। बिजली होती है सर 24 घंटे में, मेरे को लग रहा है। हंदवाड़ा थराल में वाटर सप्लाई स्कीम खस्ताहाली की शिकार हो चुकी है। लोगों का कहना है कि महकमा उन्हें एक नाले का पानी फराहम कर रहा है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से इलाके में कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। मकामी लोगों का कहना है कि 2002 में महकमे जल शक्ति ने इलाके में एक स्कीम तामीर की थी जिसमें फिल्ट्रेशन प्लांट भी शामिल था, लेकिन 2 साल चलने के बाद ही ये स्कीम नाकारा हो गई। उनका कहना है कि महकमे की जानिब से बस्ती को एक आलूदा नाले से पानी फराहम किया जा रहा है जो पीने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार महकमे के नोटिस मिलाने के बावजूद मसले को हल नहीं किया गया। उन्होंने स्कीम को दोबारा काम शुरू करने की सरकार से मांग की। फिल्ट्रेशन प्लांट 1 करोड़ रुपये पे खर्च तो तिन पथ तम पोस गई कोत तन पे गो ये 2 वरियन चलो टोटल 2 वरियन 2 वरी बाद गो ऑटोमेटिक बंद ये फिल्ट्रेशन ये जन आज डायरेक्ट आब पकान सोय नाड़ पे सह खराब आब चवान सुई आज गवर्नमेंट गुजारिश करान अगर ये 1 करोड़ रुपये खर्च सह कोत गो डायरेक्ट लाम पे पाइपन मज पाइपो जरिए आब मगर सह खराब आब तो हेकू पान तम तम सन बच्चे गसन बेमार लगभग तकरीबन दोहे सनिस गामस में बच्चे बेमार तिकाज डायरेक्ट आब आज बेमार क्योंकि बेमार आज फैलान इसलिए फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने ज्यादा गाम तक बोड़ कह मगर फिल्ट्रेशन प्लांट गवर्नमेंटस अपील कर। मेंढर सब डिवीजन के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद मेंढर में कई नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। पीर और मंगल की दरमियानी शब कई मकामात पर पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, लेकिन बारिश थमने के बाद पानी की सतह में कमी आ रही है। इंतजामिया ने बारिश के दौरान आवाम को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी। तो वहीं उधमपुर के समरोली के मकाम पर एक बड़ा पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक में काफी खलल पड़ा। पत्थर गिरने से हाईवे की एक ट्यूब फौरी तौर पर बंद हो गई। हुकाम सड़क से मलबा हटाने में मसरूफ है। पत्थरों को हटाने और ट्रैफिक को बहाल करने के लिए अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी की टीमें तैनात कर दी गई। फिलहाल गाड़ियों की नकलो हरकत का इंतजाम दूसरी ट्यूब के जरिए किया जा रहा है। दोनों समतों से ट्रैफिक सिंगल लेन का इश्तराक कर रही है। और जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट में बारिश से लोगों को बड़ा माली नुकसान हुआ है। तहसील हेडक्वार्टर में नाले का पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया है। मूसलाधार बारिश से एक मकान भी गिर गया है। लगातार मूसलाधार बारिश के बायस तहसील हेडक्वार्टर में नाले का पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। लोगों का इल्जाम है कि बल्दिया और इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा। लोगों ने इंतजामिया और बल्दिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। लोगों ने मुतासरा अफराद को इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया।
जनाब डीसी साहब से, एसडीएम सुरनकोट और तहसीलदार सुरनकोट से अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर इस मामले को हल नहीं कर सकते तो हम आवाम जो है वो आज मजबूर होकर सड़कों पर आ रही है। आज जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो हमारे नुकसान हुए हैं, ये देखें पूरा जो है आर्मी से लेकर पूरा पानी जो कलवर्ट जो बंद किए हैं और जानबूझ के जो ये महकमा है और इन्होंने कलवर्ट वहाँ रखे भी और कलवर्ट नहीं डाले। अब ये देखें पूरी दुकानें ख़त्म हो चुकी हैं और जो हम जो है रोड बंद कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ फौरी तौर पर यहाँ अपना महकमा भेजें और यहाँ देखें। स्वच्छता पखवाड़ मुहिम के तहत जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम की तरफ से सफाई मुहिम का आगाज किया गया और इस दौरान कुलगाम में RRR सेंटर को अवाम के नाम वक्फ किया गया। इस सेंटर में मकामी लोग अपने घरों का कूड़ा करकट मुख्तलिफ तरीकों से ठिकाने लगा सकते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल हुकाम ने इस अमल से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की। ये 1 तारीख से इस महीने की शुरू हुआ है और 15 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा। जो भी एक्टिविटीज इसमें हमें करनी है, इसका ऑलरेडी शेड्यूल आया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से। तो मकसद और मुद्दा इसका यही है कि सफाई पर ज़्यादा जोर दिया जाए, प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक या पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद किया जाए। जो हमारा आसपास है, हमारी सराउंडिंग्स है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारे हॉस्पिटल्स है, तो मकसद और मुद्दा जो इस प्रोग्राम का है, जो भी एक्टिविटीज़ है, वो यही है कि हम सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आपने देखा जो हमारे RRR सेंटर है यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर चावलगाम में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट इसमें करें। जो इनकी घर में जो पड़ी हुई चीज़ें, चाहे किताबों की सूरत में है, चाहे पुराने कपड़े हैं या जूते हैं, वो हमारे सेंटर पर लाए। हम भी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें हम डोनेट करें। जो भी सोसाइटी में कमज़ोर लोग हैं उन तक हम डोनेट करें, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फिर से रिसाइकिल करें, जिनको हम फिर से इस्तेमाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर जड़ा आरोप। हरियाणा में 24 फसलों पर MSP देने के बयान पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने किया पलटवार, कहा यह चुनावी जुमला। हरियाणा में सबसे पहले जेजेपी ने 4 उम्मीदवार किए फाइनल, अजय चौटाला ने दी जानकारी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना कलां से लड़ेंगे चुनाव। कुरुक्षेत्र में बदमाशों से STF अंबाला की मुठभेड़, भाखड़ा नहर के पास मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। पुंछ जिले के साउजिया में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई मुहिम और आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली के दौरान असातिज़ा और बच्चों ने रास्ते में फैले कचरे को ठिकाने लगाया और पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े सुजियान एजुकेशन क्लस्टर की जानिब से इलाके में सफाई से मुतल्लिक़ आगाही प्रोग्राम और रैली का इनेकाद किया। प्रोग्राम में जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी अनवर खान मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे और इस मौके पर बच्चों को सफाई का हलफ दिलाया गया। वहीं बच्चों को सफाई सुथराई के फवायद से आगाह किया गया। बच्चों को अपने इर्द गिर्द को साफ रखने की तरकीब भी दी गई। इस दौरान आवाम से सफाई बरकरार रखने की अपील की गई। के तहत हमारा गर्ल्स मिडिल स्कूल सावजिया के बच्चों की तरफ से यहाँ सावजिया में सफाई अभियान किया गया। इन बच्चों ने अपने स्कूल से यह सारा सिलसिला शुरू किया। ये मोहल्ला हजामा और मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल सामने की गलियों को साफ करते हुए जामा मस्जिद सावजिया तक गए, उसके इलाकों, उसके इर्द गिर्द वहाँ के पानी की सफाई की और वहाँ से जो रास्ता वहाँ बिल्कुल साथ जुड़ी हुई ज़ियारत की तरफ जाता है उसको भी साफ़ किया। ना सिर्फ कूड़ा करकट उठाया बल्कि जो इजाफी घास, जड़ी बूटियाँ रास्ते में उगे हुए थे, कांटे उगे हुए थे, उनको भी साफ़ किया और इस बात को यकीनी बनाया कि सफाई का जो मकसद था स्वच्छता पखवाड़े का उसको पूरा किया जा सके। साथ साथ मैंने, मेरे स्टाफ के कुलीग्स ने और तमाम बच्चों ने मिलकर ये स्वच्छता प्लेज भी ली कि हम अपने आप को, अपने साथियों को इस तरफ राग़िब और आमादा करेंगे कि वो हर साल कम से कम 100 घंटे वक्फ करें अपनी कम्युनिटी की सफाई के लिए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमत की तरफ से दर्जनों हैंड पंप लगाए गए ताकि जिले में जहां कहीं भी लोगों को पानी की किल्लत का सामना है कि हैंड पंप इन लोगों को राहत फराहम कर सके। लोगों का कहना है कि हैंड पंप पिछले कई सालों से मुकम्मल तौर बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जिला डोडा में लाखों रुपए मालियत का ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया और महकमे ग्राउंड वाटर ने इन हैंड पंपों को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
लोग हैंडपंपों की दोबारा मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं ताकि अवाम इन हैंडपंपों से मुस्तफीद हो सके। इससे फिलहाल फायदा तो होता था हमारे को ठीक ठाक, लेकिन ये कई सालों से लगाए गए, इधर कोई आता नहीं है, रिपेयर किया नहीं, ये खराब पड़े हुए, तो लोगों को दिक्कत बढ़ती है सर। ये गर्मी का टाइम है, डंगरू मवेशियों को पानी, और ये जहाँ जहाँ लगाने चाहिए थे सर, इन्होंने वहाँ पर लगाए नहीं। अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ लगाइए, अपनी मर्जी से लगाइए सर। स्कूल में जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारे स्कूल का जो पंप है वह पहले चलता था, आज वह नहीं चल रहा है, तो इसी से हमारा जो सफ़र है वो बहुत दूर, यहाँ से लगभग हमें 3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने। तो मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि वो हमें थोड़ा पानी के बारे में ध्यान दीजिए कि लगभग ज़्यादा नहीं, अगर 5-10 लाख रुपए इस चीज़ के पीछे अगर खर्चा हुआ है तो तभी ये चीज़ अच्छे तरीके से रन नहीं करती है। तो ये हमारे लिए अगर बनाया गया है तो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से अगर रन किया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, लगभग 10-15-20 लाख का प्रोजेक्ट होगा एक हैंडपम्प का। हमारे एरिया में अगर देखा जाए, हमारे जहाँ जोधपुर में हम रहते हैं, मैक्सिमम पंप की बात करें, मैक्सिमम हैंडपम्प की बात करें तो सभी अभी बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा पंप नहीं है जो फंक्शन कर रहा है। अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि इतना पैसा अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ खर्च रही है तो फंक्शन इसको प्रॉपरली करें। ये तो इनको बहुत साल हो गए लगे हुए, मगर सिर्फ 2 साल ये पंप चला है, उसके बाद ये पंप चला ही नहीं है। ना कोई यहाँ पे कोई आया है कि हाँ जी यहाँ पे पानी है, पंप चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसके बाद ये बंदी है। आज समझो आज तक ये बंदी है। अब ये सब देखने के लिए रहा है कि हाँ जी हमारे पास पंप है। आपको बताना चाहूँगा कुछ हमारे ऐसे वाटर स्कार्स एरिया जो कि गवर्नमेंट को बताया भी गया है और हर किसी की नॉलेज में है, उनके हैंड पंप्स को रिपेयर करने के लिए हमने इस साल की फंडिंग दी है। 65 हैंड पंप्स इस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वाटर स्कार्स एरिया, जो कि पंचाई चिराला एरिया हो गया या भद्रवा के कुछ इलाके हो गए, उनको रिपेयर करने के लिए इस प्लान में हमने उसको कवर किया है और जल्द उन पे काम शुरू होगा। और मुझे उम्मीद है कि जल जीवन मिशन अमृत। खनमू श्रीनगर में गुज़िश्ता शब बादल फटने की वजह से अंदरूनी राब्ता सड़क को शदीद नुकसान पहुंचा। वहीं पानी अस्पताल के अंदर भी दाखिल हो गया। ताहम डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज हुसैन ने इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। मकामी लोगों ने पहाड़ी इलाकों में बांध तामीर करने की मांग की ताकि ऐसे हालात में पानी का बहाव कम हो सके और लोगों का जान माल महफूज रहे। एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आज हमने यहाँ पे रूरल डिपार्टमेंट के जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं उनके साथ यहाँ मुआयना किया और आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर जो रोड है वो प्योर डैमेज हो गई है, जिसका काम अभी 2 दिन पहले रूरल डिपार्टमेंट की ओर से लिया गया था। मेरी डीसी साहब से मोहब्बाना गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फंड्स है वो थोड़ा सा वागुजार करे ताकि ये रोड फिर से हम लोग कंस्ट्रक्ट करें। और कुछ ड्रेनेज का भी इशू है यहाँ इलाके में और हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी हल करने। सब डिवीजन मेंढर की पंचायत नकमंझाड़ी की आवाम को काफी दिक्कतों का सामना है। लोगों का कहना है कि नाले पर पुल न होने की वजह से हर चौखट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद उनके मसाइल का अजाला न हो सका। लोगों का कहना है कि पुल न होने की वजह से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इंतजामिया से इलाके में पुल तामीर करने की मांग की। जगह में हमें बहुत दिक्कत होती है। ये बच्चों की किताबें बुल्लू मोड़ा का स्कूल है ये, तो इस पर हमारा जो पैसा भी है PRI का रखा हुआ था वो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें इस दरिया पे जो पुल है जो मतलब वो बहुत जरूरी है। इस सीजन में भी जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं जी सर, तो पूरा हफ्ता जो बच्चे ये घर बैठे रहते हैं, इनकी पढ़ाई का जो ज़ाया होती है जी, कोई भी इस पर आवाज़ नहीं उठाता है जी, कोई भी। इसलिए डीसी साहब से गुजारिश की जाती है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाती है जी, जल्द से जल्द ये जो पुल है जल्द से जल्द लगवा जाए ताकि हमारे बच्चों को जाने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारी नक्कामंझाड़ी मिडिल पंचायत है, बाला ब्लॉक बालाकोट की। लिहाजा इसमें जो जुल्म सितम हो रहा है वो आपके सामने पूरा रिकॉर्ड पेश करेंगे। इसमें जो भी आज तक हुआ वो 100 गलत हुआ है। तो हमारा